तो इन व्यू ऑफ दिस पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर में एनरोल कराना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में कि फ्यूचर क्या है कंप्यूटर साइंस का। तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, फ्रंट एंड पे आती है, बैक एंड पे आती है, डेटाबेस साइड आती है। तो उसमें मल्टी टायर एप्लीकेशंस बनते हैं। तो इसके अंदर सारे टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपको लर्न करना पड़ता है। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इज you have to keep on practicing and you have to build up by yourself and by your own observation mostly। ये जो चीज़ होती है। So gear up, pull up your sleeves and be ready to face the challenges globally. Hello dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे what is the future of computer science and maybe you can say allied branches of computer science। जैसे आपको पता है कि most of the engineering colleges across the country pan India admissions are majorly into computer science। या तो बच्चे कंप्यूटर साइंस में एनरोल कर रहे हैं या फिर अलाइड ब्रांचेस जैसा CSD है, CSM है, मशीन लर्निंग के कोर्सेस है, IoT रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी। तो इन व्यू ऑफ दिस पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट ईयर में एनरोल कराना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में कि फ्यूचर क्या है कंप्यूटर साइंस का। तो आई थॉट व्हाई नॉट वी डिस्कस विद वन ऑफ आवर एक्सपर्ट मिस्टर अब्दुल बारी who is having a versatile exposure and experience with regard to training the students for placements also। तो उनके साथ एक हम डिस्कशन करेंगे टू स्टडी एंड हेल्प द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू डिसाइड कि भाई फ्यूचर क्या रहेगा कंप्यूटर साइंस का इस ताल्लुक से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाई कंप्यूटर साइंस इज अ फ्यूचर। सो एज यू नो कंप्यूटर साइंस हैज इट्स से इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। कोई भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग लो, whether it is engineering, non-engineering, computer science has its say, computer science has its influence। So essentially every industry is becoming technology driven. Digital transformation across all the sectors has become mandatory. Highest paying jobs in the market are in computer science. Remote work opportunities globally available in computer science. Endless innovation and growth potential. So these are the relevant benefits as to why people prefer for a career in computer science as the future। तो रही बात अब मेन टेक्नोलॉजीज की लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा मेन एट आवर टाइम ऑफ इंजीनियरिंग भी हम भी बारी आप गौर करे होंगे अपने टाइम पर भी हम जब पढ़े थे इंजीनियरिंग देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज देयर, सब्जेक्ट था लेकिन कोई ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं था एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न और emerging field is concerned। But nowadays you can see after a gap again AI has become a prominence, has assumed a prominence or a significant role in the placements। Okay, so in view of that, basically like there are in addition to AI and machine learning, we also have quantum computing which is used for solving problems, okay, and playing a crucial role in the drug industry, cryptography and optimization, edge computing and IoT hai। And like that blockchain and web technologies, cyber security, AR VR, metaverse, these are some of the technologies which are going to help। So I think now Bari will take up what are the career opportunities and basically future career क्या है, essential skills क्या है, इसके बारे में बारी बताएंगे with regard to this। Over to Bari। Yeah, there are different job opportunities now, like AI ML engineer. Even the colleges universities has started a new branch of computer science that is for AI and ML, that is data science is also there। तो ये एक नया ब्रांच बना है। तो ब्रांच एक नया बना है, इसका मतलब ये लंबे टाइम तक जाने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि लंबे टाइम तक जाने वाला है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर उसी के ऊपर एक कोर्स बना है तो थोड़े टाइम के लिए नहीं बनता है। तो दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। देन फुल स्टैक डेवलपर फॉर बीइंग ए फुल स्टैक, एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, फ्रंट एंड पे आती है, बैक एंड पे आती है, डेटाबेस साइड आती है। तो उसमें मल्टी टायर एप्लीकेशंस बनते हैं। तो इसके अंदर सारे टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपको लर्न करना पड़ता है। तो ये लर्न करने के लिए तो काफ़ी लंबी जर्नी है और बहुत सारे जॉब्स रिसेंट पास्ट 10-15 ईयर्स में बहुत सारे जॉब्स फुल स्टैक डेवलपर के ही आए। और अब ज़्यादा जॉब्स AI ML और फुल स्टैक ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, फुल स्टैक रहेगा ही। उसके ऊपर जॉब्स अभी कम हो गए लेकिन डेवलपमेंट तो चल ही रहा है। और डेटा साइंस है, क्लाउड आर्किटेक्चर है। तो क्लाउड ही पर हमारे सारे ऐप्स चल रहे हैं आज, सारा काम क्लाउड से ही हो रहा है। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है क्योंकि क्लाउड से ही हुआ है। तो ये क्लाउड, इट्स बोथ, दैट इज क्लाउड मैनेजमेंट एंड क्लाउड डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओवर द क्लाउड, ऑल द थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस वन। सो फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्लाउड पर ही होता है।
तो ये डिफरेंट एरियाज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग इज द की हियर, प्रोग्रामिंग इज द की। अब ये माना जा रहा है कि प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी, प्रोग्रामिंग खत्म नहीं होगी, प्रोग्रामिंग करने का मेथड बदल जाएगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो एक टाइम पे प्रोग्रामिंग आर्ट थी, उसके बाद एक सिस्टमेटिक मेथड बन गया, इंजीनियरिंग हो गई वो। अब जो है ना एआई की मदद से प्रोग्रामिंग हो रही है, लेकिन इट विल बी वेरी क्विकली यू कैन डेवलप द प्रोग्राम, बट व्हाट टू डेवलप यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। सो programming is the key. For that, right now the language that is being used in AI and data science is Python, and earlier for full stack Java was used for over 20-25 years. And then you have, for doing programming, the very important thing is data structures and algorithms. So programming जब भी complete होगी data structure algorithm के साथ। Now then you have the various type of clouds are there, that AWS is there or Azure is there. These are the famous clouds. And क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये क्लाउड्स के बारे में आपको क्लाउड मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स है। तो दिस इज अ सेपरेट थिंग दैट यू कैन लर्न अबाउट, दैट इज कस्टमाइजेशन, और यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट ऑफ क्लाउड। सो एज अ प्रोग्रामर, एज अ क्लाउड कंसल्टेंट, सो दिस आर द टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। यू विल नॉट बी लर्निंग मच अबाउट दिस इन योर एकेडमिक्स। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ज्यादा आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है, आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो जब आपको कोर कॉन्सेप्ट अच्छे स्ट्रांग हो और आपकी प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो, तो सारी चीजें आसानी से समझ सकते हैं। तो यही एरिया है जो क्लाउड कंप्यूटिंग आने की वजह से और फुल स्टैक डेवलपमेंट आने की वजह से नाउ आईटी इज एबल टू कैप्चर और एंटर इन ऑल द अदर इंजीनियरिंग्स एंड इवन इन मेडिकल साइंसेस टुडे। यानी इवन वी हैव सीन इन द recent past that is recently that even IT companies are hiring doctors, because IT companies are making penetrating or having their good hold in the medical industry। क्योंकि सारी चीजें यानी हर जगह पर IT ही यूज हो रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं या टूल्स यूज हो रहा है। अब तो AI तो बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट इज यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू हैव टू बिल्ड अप बाय योरसेल्फ एंड बाय योर ओन ऑब्जर्वेशन। मोस्टली ये जो चीज होती है, इसके लिए आपको जो है ना कंटिन्यूस आप अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा और कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की अगर बात करेंगे तो ये दैट इज नथिंग बट द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट विल बी लर्निंग इन एक्चुअल सब्जेक्ट्स। अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो सॉफ्ट स्किल्स और ये एप्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। यस, बिल्कुल बारी ने बिल्कुल सही कहा। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, क्या करना चाहिए? मतलब जॉब में जाना चाहिए या हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहिए? उसके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है फॉर्मल एजुकेशन, आइदर यू कैन परस्यू इंजीनियरिंग करियर और यू कैन डू फॉर स्पेशलाइजेशन थ्रू मास्टर्स प्रोग्राम, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस है जैसे GFG के कोर्सेस अवेलेबल है। सेल्फ लर्निंग के भी कई ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स विद गिटहब पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, हैकाथॉन्स है। Then gaining some sort of industry experience with internships, that is also going to play a very crucial role starting from second year onwards. Freelancing projects hai. And then boys and girls, I always used to advocate for engineering students to prepare for GATE, because GATE is just like a lifeline for the engineering students. So if you prepare for GATE, even if you don't desire to do MTech, it will help you for consolidating your knowledge, right? So why GATE exam? There are multiple benefits of it, as you know very well. I don't have to reiterate again. So apart from doing MTech in IITs, you also stand a chance to get into PSUs. That is another major benefit of preparing for GATE. So building your own tech venture, startup entrepreneurship, ये भी एक option है आपके लिए, ठीक है? So working globally in computer science, international career prospects available है, like you can basically get an opportunity to work with giants like Google, Meta and Apple, European tech hubs है, Asian innovation centers है, remote first companies
worldwide, and the benefits are higher packages, compensations, and then work exposure, work environment, work-life balance rahega, right? And preparing for challenges ahead. Rapid technology changes, जैसा बारी ने बताया, you always have to be abreast with the coding skills and the skills which are getting lifelong updated. Okay, so basically we would say that your future with regard to computer science starts now. So gear up, pull up your sleeves and be ready to face the challenges globally. Computer science एक ऐसी field है than in comparison to other core branches like civil mechanical, एक ऐसी field है computer science जहाँ पे हमेशा आपको active रहना पड़ता है और एक sort of global village है. If you make yourself well versed with computer science and its technologies, then you stand a chance to move across globally anywhere at any place, right? So boys and girls, I would say key takeaways from this discussion is computer science offers unlimited opportunities. Technology will dominate every industry. Continuous learning is always essential. Specialization plus fundamentals will be the key for success. Okay. So master the DSA courses as Abdul Bari said, and be abreast with all the core technologies. Okay. Whether cloud hai or quantum computing hai, and focus on projects as he said very clearly, very correctly. Right, so that is what we had. I hope this small discussion basically has enlightened not only the student but also parents to think as to what is the future of computer science for the budding engineers. Thank you so much. Thank you.